हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है। सो फोटोफॉस्फोरिलेशन मींस प्रोडक्शन ऑफ ATP during photosynthesis. It is called photophosphorylation and this concept was introduced by Dr. Arnan. ठीक है, अब आप समझ लीजिए फोटो का मतलब होता है सनलाइट और फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एटीपी फॉर्मेशन। अगर आप इन दोनों शब्दों को ज्वाइन कर देते हो तो क्या होता है, फोटो मीन्स सनलाइट एंड फॉस्फोरिलेशन मीन्स एटीपी फॉर्मेशन। अब आप डेफिनेशन बना लीजिए, फोटोफॉस्फोरिलेशन इज नथिंग बट प्रोडक्शन ऑफ ATP in presence of sunlight or during photosynthesis. It is called photophosphorylation. मतलब फोटोसिंथेसिस करते समय जो भी जितना भी ATP मॉलिक्यूल बनता है, तो ATP मॉलिक्यूल को बनाने की प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। प्रोडक्शन ऑफ ATP ड्यूरिंग सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। जब हम फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस होता है ग्लूकोज बनाना, लेकिन ग्लूकोज बनाते समय हम ATP मॉलिक्यूल को भी बना लेते हैं, हम NADPH2 मॉलिक्यूल को भी बना लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। प्रोडक्शन ऑफ ATP मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज सिंपली कॉल्ड एज अ फोटोफॉस्फोरिलेशन। Dr. Arnan has introduced a concept called photophosphorylation and he says that ATP formation means photophosphorylation always takes place in a two way. One is in complete cyclic and another is in non-cyclic way. Non-cyclic means from one side to another side, but it will not cycle, it will not circulate, but in a cyclic it will circulate like that. So cyclic and non-cyclic, what is this photophosphorylation two type, we will see in detail. Let's start. So first of all I am going to teach you non-cyclic photophosphorylation, and after non-cyclic photophosphorylation I'll teach you what is a cyclic photophosphorylation, because even in book also first non-cyclic photophosphorylation is explained. So let's start. Just imagine these are, I am drawing chlorophyll molecule, and now you can see that this is a chlorophyll molecule B, this is chlorophyll molecule C, this one is D and this one is E, and here I am drawing chlorophyll A. Yes, I am drawing chlorophyll molecule here which is of 680 nanometer, so it means it is a PS second, got it? And then this is a chlorophyll molecule B, this one is chlorophyll molecule C, this one is chlorophyll molecule D, and this one is chlorophyll molecule A, and this one is chlorophyll molecule A which is having 700 nanometer, so it is indicating it is a PS1. ठीक है, इतना तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि PS1 है या 2 है, ये कैसे पता चलता है, डिपेंड ऑन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल वेवलेंथ। अगर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की वेवलेंथ 680 नैनोमीटर है तो वो है PS2, अगर क्लोरोफिल की वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है तो उसे हम कहते हैं बेसिकली PS1। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अ non-cyclic photophosphorylation first. I am going to teach you first non-cyclic photophosphorylation, and after that I will teach you cyclic photophosphorylation. Shall we? Let's start. See, non-cyclic photophosphorylation is also known as a Z scheme. ठीक है, non-cyclic photophosphorylation is also known as a Z scheme. Why it is called Z scheme? I'll tell you. When electron molecules are moving from one position to another position, they create a Z-like structure. They create a Z-like structure. That's why it is called Z scheme. But during non-cyclic photophosphorylation only, not during cyclic photophosphorylation. Remember,
In non-cyclic photophosporylation, there is also splitting of a water molecule. That's called photolysis of water. Non-cyclic photophosporylation को Z scheme भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें जब इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करते हैं, तब मूव करते समय उनका जो स्ट्रक्चर बनता है वो Z प्रकार से बनता है, मतलब ऐसे Z बन जाता है. तभी हम उसे कहते हैं Z स्कीम. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में एटीपी और NADPH2 तो फॉर्म होते ही हैं, प्लस उनके साथ वाटर भी ब्रेक डाउन होता है, जिसे हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मींस हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर. लेकिन यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे फोटोलिसिस ऑफ वाटर, बिकॉज फोटो में सनलाइट, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट विल बी कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर. तो हम वो क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं Z स्कीम क्या होता है. तो चलिए देखते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. इन अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, एंटीना means chlorophyll molecule B, C, D, E, as well as essential pigment means chlorophyll A, as well as you can say reaction center, all are playing very important role. Even though PS2 as well as PS1 both are playing very crucial, very important role. Let's start. How? Chlorophyll molecule B, C, D. Chlorophyll molecule B, C, D as a antenna or as a antennae, they are absorbing sunlight from the sun, and after absorbing sunlight, they are basically converting this sunlight into electrons, and then they are transferring this electron towards a chlorophyll molecule A. How they are transferring electron towards A? They are transferring electron towards A via electron transport chain, you can say electron transport system. ठीक है, एक चीज समझ लीजिए, ये जो टॉपिक है मैं आपको वन टेक में एकदम इजीली नहीं समझा पाऊंगा. मैं तो मेरी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपको भी थोड़ा पैशन रखना पड़ेगा. आप अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन फिलहाल मत लाइए कि ये ऐसे क्यों हो रहा है. जब आप लेक्चर खत्म करोगे ना, तब तक आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे. ठीक है, थोड़ा पैशन रखिए. सी, in a non-cyclic photophosphorylation, chlorophyll molecule B, C, D, E as an antenna, they absorb the sunlight from the sun, and after absorbing sunlight, they basically convert this sunlight into electrons, and then they transfer electrons towards a chlorophyll A, means reaction center of a PS2, which is a 680. Via which technique? By electron transport chain और electron transport system. जैसे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास एटीपी मॉलिक्यूल होते हैं. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी मॉलिक्यूल को स्टोर करते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाते हैं और वहीं पे स्टोर कर लेते हैं. फिर मान लो अगर क्लोरोप्लास्ट को एटीपी की जरूरत है, या तो न्यूक्लियस को एटीपी की जरूरत है, गोल्गी अपरेटस को एटीपी की जरूरत है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर में से एटीपी उस ऑर्गन तक कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक है, इसे हम टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं. तो जनरली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बी, सी, डी, ई, ये चारों के चारों क्या करते हैं? ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं, और इन सब इलेक्ट्रॉन को वो ट्रांसफर करते हैं रिएक्शन सेंटर ए की तरफ. कौन से रिएक्शन सेंटर ए? PS2 का रिएक्शन सेंटर. अब वो कौन सी टेक्निक से ट्रांसफर करते हैं? तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम टेक्निक से ट्रांसफर करते हैं. अब ये तो समझ गए हम कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए कोई व्हीकल तो होना चाहिए ना. ठीक है, कोई व्हीकल तो होना चाहिए. तो उन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए जो व्हीकल होता है, उस व्हीकल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल. इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल. मैं आपको कुछ लिस्ट बताता हूँ इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल. First electron carrier molecule is PQ, stand for plastoquinone. Then you can say cytochrome. Then PC stand for plastocyanine. Then UB stand for ubiquinone.
आपको मतलब समझ रहा है ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके पास 50 कार्टून है, तो आपके पास 50 कार्टून है, उनमें से कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ मीडियम साइज के हैं। तो आप क्या करोगे, जो छोटे छोटे कार्टून है वो आप अपनी एक्टिवा से भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, लेकिन जो थोड़े मीडियम साइज के हैं उसे आप बेसिकली एक छोटी सी ऑटो रिक्शा में ट्रांसफर करोगे। लेकिन अगर आपके पास कार्टून काफी बड़े बड़े हैं तो आप ऑब्वियसली ट्रक का यूज करोगे। तो आपने अपने मैनेजमेंट के थ्रू अलग अलग व्हीकल को बुलाया और आपने अपने बेसिकली जो मटेरियल है वो आपने ट्रांसफर करिए। सेम वे एटीपी मॉलिक्यूल, मतलब इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होते हैं उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल को अरेंज किया जाता है। मान लो इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा हैं, तो सबसे पहले कौन आएगा, PQ, प्लास्टोक्यूनॉन। तो ये देखिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए इन चारों ने लाइट एब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को बना लिया, ठीक है। इन चारों ने लाइट एब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को बना लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, तो देखिए इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना जब स्टार्ट करेंगे तो उनको पहला जो मॉलिक्यूल होगा इलेक्ट्रॉन को कैरी करके लेके जाने वाला है, कहां से, एक्सेसरी पिगमेंट से लेकर रिएक्शन सेंटर तक, तो वो होगा PQ। तो देखिए ये PQ ने उनको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। फिर ये देखो ये इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल आगे आगे आता है, ये इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल आगे आ गया तो PQ ने उनको एब्सॉर्ब कर लिया, PQ ने उनको एब्सॉर्ब कर लिया। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल आएगा इनको कौन एब्सॉर्ब करेगा, तो इनको सेकंड वाला एब्सॉर्ब करेगा, साइटोक्रोम। तो ये देखिए अब है ये साइटोक्रोम। और जब थर्ड मॉलिक्यूल आएगा तो उनको कौन एब्सॉर्ब करेगा, प्लास्टोसियानिन। फोर्थ मॉलिक्यूल को कौन एब्सॉर्ब करेगा, यूबिक्विनोन। व्हाट आई एम टेलिंग यू, आर यू गेटिंग? When we are transferring electron from accessory pigment to the reaction center of PS second, we are using electron transport chain or electron transport system, no doubt. But how you will carry the electron from photosystem? How you will carry the electron from accessory pigment to the essential pigment? You have to use particular instrument, no? So biological instruments are इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल। इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल। एंड ये इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल की एक लिस्ट है जिसमें सबसे पहला जो है वो है प्लास्टोक्यूनोन, सेकंड वन इज प्लास्टोसियानिन, सेकंड वन इज यू कैन से साइटोक्रोम, थर्ड वन इज अ प्लास्टोसियानिन, फोर्थ वन इज अ यूबिक्विनोन। प्लास्टोक्यूनोन carry the first electron, then then you can say cytochrome carry second electron, plastocyanin carry third electron, and ubiquinone carry fourth electron. Then they all travel towards a chlorophyll A molecule. Is it clear? So now electrons are coming towards a chlorophyll A molecule of a reaction center of a PS second, and we have to transfer this electron towards chlorophyll molecule A of a 700 नैनोमीटर which is of a PS1। तो हम ऐसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अब इन इलेक्ट्रॉन को कौन कैरी करके लेके जा रहा है, तो फर्स्ट वन जो कैरी करके लेके जा रहा है वो है PQ, ठीक है। सेकंड वन जो इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा है वो है साइटोक्रोम। फिर थर्ड वन जो इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा है वो है आप समझ लो उसे बेसिकली PC, प्लास्टोसियानिन। और फोर्थ को जो कैरी कर रहा है वो है यूबिक्विनोन। और फिर से PQ, यस, साइटोक्रोम, यस, PC और फिर यूबिक्विनोन। तो ये सब ऐसे इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। तो ये वाला हुआ देखो chlorophyll molecule B, C, D, E absorb the sunlight, and after absorbing sunlight they convert into electron, and then they transfer electron from their own accessory pigment to the reaction center of a PS second via electron transport chain, or also known as electron transport system, through electron carrier molecule. And electron carrier molecules are PQ, plastoquinone, cytochrome, PC, plastocyanin, UB, ubiquinone. When electron reaches to the chlorophyll molecule A of PS second, then same electron carrier molecule carry electron towards a chlorophyll A of a PS first, because it is having 700 nanometer. You might be having one doubt in your mind, why electrons are moving from PS second to PS1? Why not from PS1 to second?
correct? Why not from PS1 to second? Why only from PS second to 1? The reason is that chlorophyll molecule A680 have a lowest wavelength compared to the 700 nanometer. Peak level of a PS second chlorophyll A is a 680, which is lesser than the peak level of a chlorophyll A 700 of a PS1. तो PS1 में अगर इलेक्ट्रॉन फाइनली ज्यादा पहुंचेंगे तो ग्लूकोज वहां पे फाइनली ज्यादा प्रोड्यूस होगा। आप ये चीज भी सोच रहे होंगे, ये नॉन साइक्लिक फ्लो तो हो गया, लेकिन एटीपी कहां गए? एटीपी कहां गए? तो आप एक चीज याद रखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं ना तो साइड में एटीपी फॉर्म होते हैं, एटीपी फॉर्म होते हैं, ठीक है? जैसे इलेक्ट्रॉन ये मूव हो रहे हैं तो यहाँ पे एटीपी फॉर्म होता है, ठीक है? ये जो यहाँ पे एटीपी फॉर्म हो रहे हैं, सो एटीपी आर फॉर्मिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। और हमने यहाँ पे देखिए क्या किए, एक्सेसिव पिगमेंट ऑफ PS second टू द essential pigment of PS second, then essential pigment of a PS second to essential pigment of a PS1, only one direction, that's why it is called non-cyclic photophosphorylation, ठीक है? इसके लिए हम इसे क्या कहते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो अब हम देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन मतलब क्या होता है। लेट्स स्टार्ट साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। आप समझ तो गए होंगे कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में पूरा साइकिल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, पूरा साइकिल नहीं होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होगी डेफिनेशन, आप समझ सकते हो। फोटो मीन्स सनलाइट, फॉस्फोरिलेशन इज एटीपी एंड दिस इज साइक्लिक। मीन्स प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन अ साइक्लिक मैनर, इट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। सी, पहले मैं बेसिकली फोटो सिस्टम ड्रॉ कर लेता हूं। This is B, this one is C, this one is D, this one is E of 680 nanometer, means PS second, and this one is chlorophyll molecule B, chlorophyll molecule C, chlorophyll molecule D, chlorophyll molecule E, and this one is chlorophyll molecule A 700 nanometer, means it is PS1, ठीक है? चलिए अब देखते हैं, अब हम देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। स्टार्ट। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन is a photophosphorylation in which electron moves in a cyclic manner, not like in non-cyclic, like only in single direction. But in this, electron moves in cyclic manner. But for your kind information, for your note, remember in non-cyclic, in a cyclic photophosphorylation, there is no role of PS second. साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में PS सेकंड का रोल ही नहीं होता है। अब आप ये सोचोगे, अगर इसका रोल ही नहीं है तो इसे हमने साइक्लिक क्यों कहा है? मैं आपको प्रूफ करूंगा, मैं आपको सिर्फ थियरी में प्रूफ नहीं करूंगा, आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, और प्रैक्टिकली मैं आपको साइकिल बना के दिखाऊंगा। लेकिन फिर भी PS2 का इसमें कहीं पे भी रोल नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। See, I'm going to show you cyclic photophosphorylation. आपको इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल तो सब याद है, अब थोड़ा बहुत चेंजेस होगा यहाँ। सी, cyclic photophosphorilation in which मैं एक और मार्कर लेता हूँ बिकॉज मुझे एक और कलर की जरूरत है। यस, cyclic photophosphorylation in which chlorophyll molecule B, chlorophyll molecule C, chlorophyll molecule D and chlorophyll molecule E as a antenna absorb the sunlight, and after absorbing sunlight, can you see this green color? Okay,
linings are also sufficient. Chlorophyll molecule B, C, D, E, antenna of a PS first, or you can say accessory pigment of a PS first, absorb the sunlight, and after absorbing sunlight, they also convert into electron. And now they transfer electron towards PS1 of a 700 nanometer. B also transfer, C also transfer, D also transfer, E also transfer. They transfer electron towards a chlorophyll A of a PS1 700 nanometer. Via which technique? Via electron transport chain, or you can say electron transport system, through electron carrier molecule. But remember, here electron carrier molecule PQ, cytochrome, you can say PC, ubiquinone is not only like that. First electron carrier molecule is always FR, means ferredoxin reducing, actually FRS, ferredoxin reducing substance. अब आप एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल डी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ई, ये चारों के चारों एक्सेसरी पिगमेंट सनलाइट एब्सॉर्ब करते हैं, सबसे पहली बात। फिर उस सनलाइट में से वो इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरोफिल ए की तरफ, जो कि 700 नैनोमीटर है, जिसे हम कहते हैं PS1, उसकी तरफ ट्रांसफर करते हैं। लेकिन ट्रांसफर कैसे करते हैं? वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे मैंने आपको नॉन साइक्लिक में बताया था। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल जो होते हैं, वह सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होता है वो होता है FRS, जिसका फुल फॉर्म होता है फेरेडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फेरेडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, अब ये क्या है? फेरेडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस इज अ आयरन कंटेनिंग रेड कलर पिगमेंट। Ferredoxin reducing substance is a iron containing red color pigment which carry electron from accessory pigment to the reaction center as a first electron carrier molecule। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जो हमने नॉन साइक्लिक में देखे थे। कौन से? PQ stand for प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, then PC stand for प्लास्टोसियानिन, UB stand for यूबिक्विनोन। तो ये सब है इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल। सिर्फ डिफरेंस ये होता है नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में। नॉन साइक्लिक में BCDE एक की तरफ भेजते हैं, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होता है PQ, फिर साइटोक्रोम, फिर PC, फिर यूबिक्विनोन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे BCDE इलेक्ट्रॉन भेजते हैं एक की तरफ, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले जो यूज होता है वो होता है FRS, उसके बाद PQ, फिर साइटोक्रोम, फिर PC, फिर UB। फिर अब इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ आ गए, फिर अब ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन को फिर से ट्रांसफर करेंगे इनके पास, और ये इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे? ये फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे A के पास। अब ये क्या करेंगे? ये फिर से इलेक्ट्रॉन इनके पास ट्रांसफर करेंगे। तो यही होगा BCDE transfer electron towards A and A again transfer electron towards BCDE। ये क्या होता है? ये कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहता है, यहां तक जाते ही नहीं, सिर्फ ये यहीं पे आपस में ही घूमते रहते हैं। इसका फायदा क्या होता है? What is advantage of cyclic फोटोफॉस्फोरिलेशन? आप बताइए मुझे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का क्या फायदा होता है? सी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ये जितना ज्यादा घूमते रहेंगे वहां पे क्या फॉर्म होगा? ATP फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे ATP फॉर्म, यहाँ पे ATP फॉर्म, यहाँ पे ATP फॉर्म। जितना ज्यादा घूमते रहोगे कंटिन्यूअसली BCDE to A to BCDE, अगेन BCDE to A to BCD, जितना ज्यादा घूमते रहोगे गोल, इतना ATP फॉर्मेशन ज्यादा होगा। So in a cyclic photophosphorilation, electrons are moving from chlorophyll molecule BCDE to A, and again these electrons are moving from chlorophyll molecule A to BCDE, again they are coming from BCDE to A, and again they are moving from A to BCD।
So they are moving in a cyclic way, but only in the photosystem 1, not in the photosystem 2. That's why it is called cyclic photophosphorylation. The main advantage is that in a cyclic, electron moves on rolling manner, and they form some more and more number of ATP molecule. Therefore cyclic photophosphorylation is advantageous. लेकिन एक चीज है, फोटोफॉस्फोरिलेशन सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी? डॉक्टर अर्नन ने। डॉक्टर अर्नन ने यह भी कहा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन विच देयर इज आल्सो द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मींस ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। और जब वाटर ब्रेकडाउन होता है तब एटीपी भी फॉर्म होते हैं, तो डॉक्टर अर्नन ने यह भी कहा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन produces extra ATP compared to the cyclic, but in cyclic also there is a continuation flow and therefore continuation ATP formation. Thank you so much for watching this video. ये हमारा टॉपिक था cyclic and non-cyclic photophosphorylation, means production of ATP molecule in presence of sunlight, either in a cyclic way or either only in single direction non-cyclic way. Thank you so much.